میرے ابا مولوی تھے اور اصولوں کے بڑے پکے ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد کے معاملے میں بے حد سخت بھی تھے۔ انہوں نے میرا نام امیرہ رکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے چل کر میرا نام ہی میرے لیے گالی بن جائے گا۔ کاش میں کبھی وہ قدم نہ اٹھاتی تو مجھے زندگی میں یہ سب نہ کرنا پڑتا اور نہ میں اپنی نظروں میں گرتی۔ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہاں کچھ قاعدے قانون تھے جو میرے ابا نے بنا رکھے تھے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، 5 بہنیں اور ایک لوتا بھائی جو ہم سب بہنوں سے چھوٹا تھا، اور ابا اماں نے شاید اسی کے انتظار میں ہم بیٹیوں کو پیدا کیا تھا۔ 2 بہنیں مجھ سے بڑی اور 2 چھوٹی تھیں، مگر ابا کی نظر میں سب ایک ہی برابر تھی۔ یہاں کوئی لاڈلا یا پیارا نہیں تھا سوائے میرے بھائی کے، وہ تو ابا کی جان اور اماں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ میری دونوں بڑی بہنوں کی ابا نے ایک ساتھ شادی کر دی تھی۔ ان کی شادیوں کو 1 سال ہو چکا تھا اور دونوں کے پاس اب ایک بیٹا تھا اور دونوں ہی اپنے گھر میں خوش تھی۔ ہم ساری بہنوں میں سے کسی نے بھی پرائمری سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، ہاں لیکن سلائی کڑھائی کے کورس اماں سب کو کروا رہی تھی۔ دونوں بڑی بہنوں کی شادیوں کے بعد اب میں اور مجھ سے چھوٹی والی بہن ایک ساتھ سلائی سینٹر جاتی تھی جو ہماری گلی سے 2 گلی آگے تھا۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی، لیکن میری آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے جو مجھے کسی صورت پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ویسے تو میں نے بھی 5 جماعتیں ہی پاس کی تھیں، لیکن میری اردو لکھنے پڑھنے میں بہت اچھی تھی اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پر اماں کہتی تھیں کہ انسان اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائے تو اچھا رہتا ہے، اسی لیے ہم سب بہنوں کو بنیادی تعلیم دلوا دی گئی تھی۔ ویسے بھی بقول ابا کے بیٹیوں کو گھرداری کرنی ہوتی ہے، اسی لیے انہیں گھریلو کاموں میں ماہر ہونا چاہیے، اور اب میں اور میری باقی بہنیں گھرداری میں ماہر ہونے کی تیاری میں تھی۔ ابا مولوی بھی تھے اور ایک چھوٹی سی دکان بھی تھی جو ہمارے محلے سے کچھ دور تھی۔ ابا کی دکان کے سامان میں ردی بھی آیا کرتی تھی جس میں سے میں رسالے وغیرہ نکال لیتی تھی اور رات کو ابا سے چوری چھپے پڑھا کرتی تھی۔ مجھے کہانیاں پڑھ پڑھ کر کہانیوں جیسی زندگی جینے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں خوبصورت سے کپڑے پہنے لمبی سی چوٹی بنا کر اپنے گھر کے بڑے سے صحن میں بیٹھی چاند کو تکتی رہوں اور اسی چاند کو دیکھ کر اپنے محبوب کے تصور میں کھو جاؤں، مگر یہاں تو خوبصورت کپڑے تھے نہ بڑا سارا صحن۔ ہمارے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے آنگن میں تو چاند دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ چاند سے ملاقات کے لیے چھت پر جانا پڑتا تھا، اور چھت پر جانے پر ابا نے پابندی لگائی ہوئی تھی کیونکہ اوپر 4 دیواری نہیں تھی، اسی لیے لڑکیاں بے پردگی کی وجہ سے اوپر نہیں جا سکتی تھیں۔ ہم چاروں بہنیں برقع پہنا کرتی تھیں۔ سب سے چھوٹی بہن 12 سال کی تھی اور بس جلد ہی وہ بھی ہماری طرح برقع پہننے والی تھی۔ ابا ہمیں بازار تک نہیں جانے دیتے تھے۔ عید وغیرہ پر ہمارا ایک جوڑا اماں ہی لایا کرتی تھی اور ہمیں چوڑیاں تک پہننے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ابا کہتے تھے یہ سب شوق قوانی لڑکیوں پر نہیں جچتے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہم بہنوں نے عید پر بھی چوڑیاں پہنی ہوں۔ جب میری بہنوں کی شادی ہوئی تب کہیں جا کر انہوں نے بننا سنورنا شروع کیا۔ ایک روز میں اور میری بہن سلائی سینٹر جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا راستے میں کھڑا ہمیں گھور رہا ہے، اور پھر جب ہم اس کے قریب سے گزرے تو اس نے ہمارے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ لڑکا روزانہ ہمارے راستے میں کھڑا ہوتا اور پھر پیچھا کرنے لگ جاتا۔ میں اور میری بہن عبایا پہنتے تھے، کبھی کسی سے راستے میں بات نہیں کی تھی، پتہ نہیں وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا۔ ایک روز تو اس نے حد ہی کر دی جب راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ میرے کندھے سے لٹکے ہوئے بیگ پر رکھ کر فوراً بھاگ گیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ تو شکر ہے اس گلی میں کوئی موجود نہیں ہوتا، اور اس وقت دوپہر کے 3 بجے عموماً وہ گلی خالی ہوتی تھی۔ اس کے وہاں سے بھاگنے کے بعد میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور بیگ میں ڈال لیا تاکہ وہاں کوئی دیکھ نہ لے۔ میری بہن بھی اس ساری صورتحال سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے اسے منع کیا کہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ سلائی سینٹر سے واپس آ کر میں نے سب کے سونے کے بعد وہ خط پڑھا۔ اس میں لڑکے نے اپنا نام عابد لکھا ہوا تھا اور لکھا تھا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے میرا نام بھی معلوم تھا۔ میں سخت حیران اور پریشان ہو گئی کہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا اور مجھے اس نے کہاں دیکھا جو پسند کرنے کی بات کر رہا ہے۔ میں نے فٹافٹ وہ خط پھاڑ کر کچرے میں ڈال دیا۔ اگلے 2 دن تک وہ پیچھا کرتا رہا، شاید میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ہم تو اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتے تھے۔ ایسے کاموں کی جرت تو ہمارے اندر مر کے بھی نہیں پیدا ہو سکتی تھی، مگر وہ بھی ارادوں کا پکا معلوم ہوتا تھا۔ اس بات کے 5-6 دن بعد اس نے دوبارہ ایک خط میرے سامنے پھینک دیا اور وہاں سے بھاگ کر دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری بہن نے وہ خط اٹھایا اور مجھے تھما دیا۔ پہلے کی طرح گھر جا کر رات کو سب کے سونے کے بعد میں نے خط پڑھا تو اس میں اس نے کھل کر اظہار محبت کیا ہوا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میں اسے خط کا جواب دوں ورنہ وہ میرا راستہ روک کر جواب لے گا۔ یہ پڑھ کر میں گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو کیا ہوگا۔ اس ڈر سے میں نے اسے خط کا جواب لکھ دیا اور اسے سمجھایا کہ یہ سب یہیں ختم کر دے کیونکہ ہمارے گھر میں یہ سب بہت برا سمجھا جاتا تھا، مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے روزانہ بنا کسی ناخے کے راستے میں کھڑے ہونے کی شاید قسم کھا رکھی تھی۔ اس طرح پورا 1 مہینہ گزر گیا اور اب ہمارے سلائی کورس کا آخری مہینہ شروع ہو چکا تھا۔
एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे रास्ते में खड़ा हुआ नजर नहीं आया तो मेरी नज़रें उसे तलाश करने लगी, और फिर अगले 2 दिन वो कहीं नजर ना आया तो मेरा दिल बेचैन हो गया। मेरी बहन ने कहा कि शुक्र अदा करो उसने हमारा पीछा करना छोड़ दिया है, वरना अब्बा को पता चल जाता तो क़यामत आ जाती और हम सब का घर से निकलना भी बंद हो जाता। मगर मेरी बहन को मैं ये नहीं कह सकती थी कि उसे मौजूद ना पाकर मेरा अपना दिल किस हाल में था। मेरा दिल चाह रहा था कि वो कहीं से सामने आ जाए बस। अगले दिन वो वाकई सामने आ गया। उसकी कलाई पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी और पहले से कमज़ोर और उदास लग रहा था। उसने जल्दी से ख़त मेरे कदमों में फेंका और वहाँ से चला गया। मैंने भी फटाफट वो ख़त उठाकर बैग में डाल लिया। मेरी बहन ने मुझे मना किया कि इन कामों में मत पड़ो, मगर मेरा दिल अब कुछ समझने और सुनने की कंडीशन में नहीं था। मैंने घर आने के बाद वो ख़त पढ़ा और मैं रोने लग गई। आबिद ने मेरे जवाब ना देने की वजह से खुदकुशी की कोशिश की थी, मगर शुक्र है कि वो बच गया। और उसने ख़त में लिखा था कि कल आखिरी मर्तबा वो मेरे जवाब का इंतज़ार करेगा। अगर मैंने जवाब न दिया तो वो दोबारा अपनी जान ले लेगा। मैंने उसका वो ख़त भी फाड़ के फेंक दिया और जवाब लिखकर बैग में डाल दिया। अगले दिन सेंटर जाते हुए वो जवाब उसके पास फेंक कर हम आगे बढ़ गए। मैंने अपनी बहन को भी पता नहीं लगने दिया कि मैंने उसके करीब से गुजरते हुए वहाँ ख़त फेंका था। उसके बाद ये सिलसिला मज़ीद 2-3 दिन तक चला, क्योंकि बहन की मौजूदगी में ये सब चलते रहना बहुत मुश्किल था। कोई पता नहीं था कि वो कब अब्बा के डर की वजह से उनको ये सब बता दे। तीसरे दिन उसने मुझे ख़त में लिखा कि कल किसी तरह बहन को घर छोड़ाना। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी, मगर इत्तफाक ऐसा हुआ कि मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो गई और उस दिन वो सेंटर नहीं जा सकी। मुझे अकेले जाने का मौका मिल गया और उसी दिन आबिद ने मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिया। मैंने उसे लाख मना किया कि हमारे 3 कमरों के छोटे से घर में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना नामुमकिन था, पर वो नहीं माना और फ़ोन मुझे थमा कर चला गया। मैंने डरते हुए मोबाइल अपने बैग में डाला और घर आने के बाद जब सब सो गए तो स्टोर रूम में जाकर फ़ोन निकाला। उसमें से एक नंबर आबिद के नाम से सेव था। मैंने उसे मैसेज किया कि मैं कॉल पर बात नहीं कर सकती वरना पकड़ी जाऊंगी। फिर आधे घंटे तक आबिद से मैसेज पर बात करती रही। उसने बताया कि वो दूसरे मोहल्ले में रहता है और उनका अपना कारोबार है। उसने मुझे सेंटर के रास्ते में ही आते जाते देखा था, बल्कि बिना मेरा चेहरा देखे वो मुझसे दीवानावार मोहब्बत करने लगा था। मैंने उसे बताया कि चंद दिन मजीद हैं सेंटर के, फिर कोर्स पूरा हो जाएगा और मेरा घर से निकलने का बहाना भी ख़त्म हो जाएगा। आबिद ने जवाब दिया कि वो जल्द ही मुझे यहाँ से ले जाएगा। मैं सोचने लगी कि अभी तो मैं 15 साल की हूँ और अब्बा मेरी शादी कम से कम 18 साल का होने के बाद ही करेंगे, और क्या अब्बा मान जाएंगे मेरी पसंद से शादी करने पर? मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मालूम थे, लेकिन मैं इतना जानती थी कि मैं भी आबिद से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। हर वक्त उसे ही सोचती रहती, और जैसे जैसे दिन गुजरे थे मुझे ये फिक्र खाए जा रही थी कि घर से निकलना बंद हो गया तो आबिद को कैसे देख सकूंगी। फिर जब मेरे सिलाई सेंटर का आखिरी हफ्ता था, आबिद ने मुझे कहा कि मैं उसके साथ घर से भागकर शादी कर सकती हूँ और यही एक तरीका है कि हम हमेशा के लिए साथ रह सकेंगे। मैंने भी सोचा कि वैसे तो अब्बा हरगिज़ नहीं मानेंगे और अभी बहुत साल बड़े हैं, क्या पता अब्बा इस दौरान कहीं और मेरा रिश्ता तय कर दें। मुझे ये बात किसी कीमत पर मंजूर न थी। मैंने आबिद की बात मान ली और सेंटर का जो आखिरी दिन था उसी दिन भागने का प्रोग्राम तय कर लिया। उस दिन मैंने सिलाई वाले बैग में से सामान निकालकर अपने 2 जोड़े उसमें रखे और बहन के साथ सेंटर चली गई। मगर छुट्टी होने से 1 घंटा पहले ही वॉशरूम के बहाने से बाहर की तरफ आई और बाहर आकर चौकीदार से तबीयत खराब का बहाना करके घर जाने का कहकर वहां से निकल आई। गली के नुक्कड़ पर आबिद बाइक लेकर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही खुश हो गया और फिर हम जल्दी से बाइक पर वहां से निकल गए और सीधा बस अड्डे पहुंच गए। आबिद ने मुझे बस में बैठने का इशारा किया तो मैंने पूछा कि हम बस में कहाँ जा रहे हैं, क्या वो मुझे अपने घर नहीं लेकर जाएगा? तो उसने कहा कि दूसरे शहर जाकर निकाह करेंगे, वहाँ मेरे दोस्तों ने इंतज़ाम कर रखा है, निकाह के बाद वो मुझे अपने घर ले जाएगा। मैं उसकी बात पर यकीन करते हुए बस पर सवार हो गई। वो मेरे साथ बैठा था। बस अपनी मंजिल पर रवां दवां थी और मैं सोच रही थी कि अब तक तो मेरी बहन ने घर जाकर अब्बा अम्मा को मेरे गायब होने की इत्तला दे दी होगी और जाने वहाँ क्या कोहराम मचा हुआ होगा। मगर अब ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने इन सोचों को झटक कर आने वाली खूबसूरत ज़िंदगी के ख्वाब जागती आंखों से देखना शुरू कर दिए। 6-7 घंटों बाद एक शहर के बस स्टॉप पर बस रुकी तो वहाँ आबिद ने मुझे उतरने का कहा और फिर हम रिक्शे में बैठकर एक घर में चले गए। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद 2 औरतें आईं और उनके साथ कुछ आदमी भी थे। आबिद ने कहा कि वो काजी को लेकर आता है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और मैं कमरे में बैठी उसका इंतज़ार करने लगी। जब काफ़ी देर गुजरने के बाद वो नहीं आया तो मैंने कमरे से बाहर निकलकर देखना चाहा, मगर कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने दरवाज़ा बजाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद मज़ीद 2 घंटे गुजर गए। अब तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आबिद मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। मैं दिल को तसल्लियाँ देने लग गई, मगर फिर मेरी सारी तसल्लियाँ पानी की तरह बह गई। जब दरवाज़ा खुला तो वही 2 औरतें मौजूद थीं, मगर उनके हुलिये बदले हुए थे और वो आपस में आंखों के इशारे से बात कर रही थी।
मैंने उनसे पूछा कि आबिद कहाँ है, तो वो हंसने लगी। उनमें से एक ने जवाब दिया कि वो आबिद नहीं बल्कि उनका दलाल है जो लड़कियों को धोखा देकर उन्हें बेचने के लिए हमारे पास लाता है। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझ पर यह इंकशाफ बहुत भारी था कि आबिद मेरे शहर या मोहल्ले का रहने वाला भी नहीं था। जाने वो कौन था जिसके धोखे में मैं फंस गई थी। मैं और अब सिवाय पछताए के मेरे हाथ में कुछ नहीं था। वो दोनों औरतें कौन थी मुझे कुछ पता नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि आबिद तुम्हें हमारे पास बेच चुका है और अब हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गई। मुझे कुछ नहीं पता चला कि वो कौन सी जगह थी। जब मेरी आंखों से पट्टी उतारी तो मैं एक बहुत बड़े बंगले के बैरूनी हिस्से में खड़ी थी। वहाँ से वो लोग मुझे पीछे के रास्ते से सीढ़ियाँ चढ़ाकर एक कमरे में ले गए और कहा कि आज से यहीं रहोगी। अगर भागने की कोशिश भी की तो याद रखना, बाहर की दुनिया बड़ी जालिम है, तुम्हें नोच खाएगी। मैं उनकी बातों से खौफजदा हो गई और सोचा कि वो ठीक ही तो कह रही हैं। जैसे आबिद ने मुझे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया, ऐसे तो कोई कुछ भी कर सकता था मेरे साथ। मैं यही सब सोच रही थी कि एक औरत अंदर आई। उसने मुझे एक जोड़ा पहनने के लिए दिया और कहा कि नहा धोकर सो जाओ अब। मैं नहा कर निकली तो कमरे में खाना पड़ा हुआ था। वो मैंने खाया और कमरे का जायजा लेने लगी। ये एक बहुत बड़ा कमरा था मगर यहाँ रोशनी बहुत कम थी। इतने बड़े कमरे में सिर्फ एक लाइट जल रही थी और पूरे कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद की हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उस कमरे के अंदर बाहर से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे पता नहीं बाहर की दुनिया ही वीरान हो गई हो। मैं कमरे का जायजा लेकर लेट गई। बहुत नरम बिस्तर था। मुझे फौरन नींद आ गई। जब मैं भरपूर नींद लेकर उठी तो कमरे में अंधेरा हो रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये दिन का वक्त है या रात हो गई है, क्योंकि हर वक्त कमरे का माहौल एक जैसा रहता था। मैं अभी जागी थी तो एक औरत कमरे में आई। उसने मुझे खाना दिया और कहा कि अब रात हो गई है, आराम करो। मैं बड़ी परेशान थी कि ये किस कैद में फंस गई हूँ और अभी तो सोकर उठी हूँ, फिर कैसे सोऊंगी। मगर मैंने खाना खाया तो कुछ देर तक मुझे नींद आ गई। कई घंटों बाद मेरी आँख खुली तो मुझे अपने जिस्म में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। उस वक्त भी कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी जो कि कमरे में मौजूद एक छोटे से बल्ब की थी। मैंने उठकर दूसरी लाइट जलाने की कोशिश की मगर मुझे कमरे की किसी दीवार पर स्विच बोर्ड नहीं मिला। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ कि ये कौन लोग हैं और कैसी जगह है, पर अब मैं पूरी तरह उनके रहमो करम पर थी। मैं खामोश होकर एक कुर्सी पर बैठी हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वही औरत अंदर आई। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी, यानी कि यह सुबह का वक्त था। उसने मुझे नाश्ता दिया और ख़ुद खामोशी से वहाँ से चली गई। नाश्ता करने के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे फिर से नींद आने लगी थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कमरा बिल्कुल बंद होने की वजह से मेरे आसाब जवाब देते हैं और मैं सो जाती हूँ। अब की बार जब सोकर उठी तो मेरे जिस्म में पहले से ज़्यादा दर्द था और जब नहाने के लिए वॉशरूम गई तो मैंने देखा कि मेरे जिस्म पर हल्के हल्के से निशान बने हुए थे। ख़ास तौर पर बाजुओं पर ज़्यादा निशान थे। मुझे ये सब माजरा बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं अब बैठी हुई उस औरत का इंतज़ार कर रही थी मगर वो काफ़ी देर तक नहीं आई। आखिर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में खाने की ट्रे और पहनने के लिए कपड़े थे। उसने कहा कि नहा धोकर कपड़े पहन लो और खाना खा लो। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और ये कौन सी जगह है, मगर उस औरत ने मुझे कोई जवाब न दिया और खामोशी से दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। वो जब कमरे का दरवाज़ा खोलती थी तो मैंने नोट किया बाहर से भी कोई रोशनी दिखाई नहीं देती थी। ऐसे लगता था जैसे ये कमरा किसी तय खाने या फिर ऐसी जगह पर है जहाँ इस कमरे के बाहर भी एक कमरा बना हुआ है। मैं अब बहुत ज़्यादा पछता रही थी। मुझे अम्मा, अब्बा और मेरे घर वाले बहुत याद आ रहे थे। काश मैं वो कदम ना उठाती और ना यहाँ तक पहुँचती। रोते हुए मैंने कपड़े बदले, खाना खाया और खाना खाते ही मुझे नींद आने लगी। ये सिलसिला अब रोज़ का था। मुझे दिन की खबर होती ना रात का पता चलता, बस हर वक्त ग़नूदगी सी सवार रहती। मुझे ऐसा लगता था कि रात को वो औरत मेरे कमरे में आती है और उसके साथ कोई और भी मौजूद होता है, लेकिन मुझे नींद के गलबे में पता नहीं चलता था। ऐसा भी नहीं था कि मेरा दिमाग पूरी तरह सो जाता था, बल्कि मुझे किसी किसी दिन वाज़ेह तौर पर ऐसा महसूस होता था कि कमरे में 2 की बजाय 3 लोग मौजूद हैं और दूसरे दिन मेरे जिस्म पर पहले से गहरे निशान होते थे। जाने कितने दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैंने सोचा कि आज खाना आया तो खाना नहीं खाऊंगी और नींद का नाटक करके देखूंगी कि मेरे सोने के बाद कमरे में होता क्या है। फिर उस रात मैंने ऐसा ही किया। जब वो औरत खाना देकर गई तो मैंने वो खाना उठाकर अलमारी के पीछे छुपा दिया और कुछ ट्रे में ही छोड़ दिया। कुछ देर बाद वो ट्रे उठाकर ले गई और मुझे सोने का कहकर बाहर चली गई। मैं आंखें बंद करके लेट गई। मुझे महसूस हुआ कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है और साथ ही अजीब सी खुशबू मेरे नाक से टकराई। मुझे लगा वही औरत आई है कमरे में, मगर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था। वो लोग कमरे में मेरे बेड के पास आकर रुक गए और फिर उस औरत ने जो कहा वो सुनकर मेरी रूह लरस गई। वो कहने लगी कि ये लड़की है बाबा और ये 15-16 साल की है, इसी पर अमल करके हम अपने इरादों में कामयाब हो सकते हैं। बाबा की आवाज़ आई कि किसके लिए अमल करना है। उस औरत ने कहा कि वो जो अपने कोठे पर गोरी बाई है उसी के लिए करना है, ताकि वो ऐसे ही जवान और खूबसूरत रहे
क्योंकि बाबा जी, आपने ही कहा था कि अमल किसी ऐसी लड़की पर होगा जो 15-16 साल की होगी। बाबा ने हंसते हुए कहा कि हाँ, मुझे मेरे शागिर्द ने बताया है, जो इतने दिन से यहाँ आकर अमल कर रहा था। अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बाबा ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और मैं सख्ते के आलम में लेटी हुई सोच रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं था मैं किसी कोठे पर हूँ, और ये कैसे जाहिल लोग हैं जो मुझ पर अमल करके किसी और को जवान रखना चाहते थे। फिर अमल पूरा हो गया तो बाबा ने मेरा नाम पुकारा, जिसे सुनकर मेरी रूह एक बार फिर लरस गई। बाबा ने कहा, आज से ये लड़की अमीरा बाई है। इसके बाद वो लोग कमरे से चले गए और मैं उठकर बैठ गई। मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन भी मैं रो रही थी जब खाना देने वाली औरत मेरे कमरे में आई और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे यहाँ से भागने में मदद कर सकती है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि मुझे यहाँ से निकाल दो तो तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। उसने कहा कि वो मुझे मौका देकर यहाँ से निकाल देगी, और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही किसी से धोखा खाकर यहाँ पहुंची थी, और अब वो मेरी मदद करके अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहती थी। उसने कहा कि ये लोग जो करते हैं चुपचाप करने दो, किसी की तरह किसी के अमल से कुछ नहीं होगा, मगर कुछ बोलोगी या एहतजाज करोगी तो ये लोग तुम्हें भी नाचने गाने पर लगा देंगे। अभी तुम कुछ हफ्ते महफूज हो जब तक अमल चल रहा है। मैं उसकी सारी बातें समझ चुकी थी। उसके बाद वो अमल चलता रहा और ये औरत जब मुझे खाना देने आती मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लिया करती थी। उसने मुझसे मेरे अब्बा का फ़ोन नंबर लिया और अपने ठिकाने पर जाकर अब्बा से बात की। उसने अब्बा से कहा कि आपकी बेटी को किसी ने अगवा करके कोठे पर पहुंचा दिया है और वहाँ वो अब तक बिल्कुल महफूज है। मैं जल्द ही उसे यहाँ से निकालकर आपके पास भेज दूंगी। ये सुनकर अब्बा रोने लगे और कहने लगे कि बहन जल्दी करना, हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद उस औरत ने ये सारी बात मुझे बताई तो मैं उसके गले से लगकर रो पड़ी, क्योंकि उसने अब्बा और मेरे घर वालों के सामने झूठ बोलकर मेरा भरम कायम कर दिया था। इस बात के एक हफ्ते बाद एक दिन वो मेरे कमरे में आई और मुझे खाना देने के बहाने कहने लगी कि आज रात 11 बजे तैयार रहना, हम यहाँ से निकल जाएंगे। आज यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है और सबके सब वहीं मसरूफ़ रहेंगे, तब मैं पिछले रास्ते से तुम्हें निकाल कर ले जाऊँगी। मैंने ऐसा ही किया। उस औरत की बात के मुताबिक मेरे कमरे में रात तक कोई नहीं आया। मैंने अपनी चादर अपने पास रख ली और जैसे ही 11 बजे रज़िया बाई आई तो मुझे चुपके से बाहर निकलने का इशारा किया। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। हम चुपके से एक पतली गली से निकल रहे थे। रज़िया बाई सारे रास्ते अच्छी तरह जानती थी जिन पर आज कोई खतरा नहीं था, और फिर पता नहीं किन किन पतली गलियों से होते हुए हम मेन रोड पर आ गए। इतने दिन बाद मुझे ताज़ा हवा में सांस लेने का मौका मिला था। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और रज़िया बाई से पूछा कि मुझे मेरे घर भेजकर वो खुद कहाँ जाएंगी। एक दुख भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, मगर वो बोली कुछ नहीं। फिर हम बस में बैठ गए और बस सारी रात चलती रही। आखिरकार मेरा शहर आ गया। मैंने उसे अपने घर का पता बताया और इस तरह हम घर पहुंच गए। अम्मा अब्बा बहुत रोए मुझसे मिलकर और शुक्र अदा करने लगे कि मैं इज्जत के साथ घर पहुंच गई हूँ। मैंने अम्मा अब्बा को बताया कि किस तरह रज़िया बाई ने मेरी मदद की और अब उनका कोई ठिकाना नहीं है। अब्बा ने रज़िया के सर पर हाथ रखकर उनको रज़िया बीबी कहा और ये भी कहा कि आज से आप मेरी बहन हैं, इसीलिए सुकून से अपने भाई के घर रहें। रज़िया खाला ये सुनकर खुशी से रो पड़ी, मगर मैं ये सब होने के बाद जान चुकी थी कि एक औरत की हद क्या है और वो किस तरह महफूज रह सकती है।